یہ اس ریت کی عادت ہے، کئی ہزار برس پہلے سے چلتے پھرتے باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی باتوں میں ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک کہانی۔ ایک ترپال کی اوٹ پکڑ کے دھوپ پہ لکھا سایہ، رگوں کے جیسے گنجل گلیاں، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھی گئی تھی جب امیر صادق محمد اول نے 1728 میں الہ آباد کے نام سے ایک علاقے میں اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو بعد میں بھاولپور بنا۔ 227 سال بعد جب 1955 میں بھاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تو یہ حقیقت اور بھی واضح ہو گئی کہ دراصل بھاولپور ہی وہ ریاست ہے جس کے بغیر پاکستان کے وجود کی تکمیل ممکن ہی نہیں تھی، اور ایسا ہوا بھی۔ بھاولپور نے پاکستان کے لیے وہی کردار ادا کیا جو ایک جسم کے لیے دل کیا کرتا ہے۔ نظریاتی حوالے سے بھاولپور ہی وہ سرزمین تھی جو مکمل طور پر نظریہ پاکستان کی عکاس تھی، ایک ایسی فلاحی ریاست جہاں عوام کی بہبود کا مکمل خیال رکھا جاتا تھا، سکون تھا، امن تھا، ترقی اور خوشحالی تھی۔ علم و آگہی کے حوالے سے ریاست بھاولپور کو بر صغیر پاک و ہند میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ جو خواب اس ملک کے بانیوں نے پاکستان کی شکل میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر بھاولپور کی شکل میں پہلے سے موجود تھی۔ یہاں کے بیدار مغز حکمرانوں نے، اور خاص طور پر آخری نواب جناب صادق محمد خان عباسی نے بھاولپور کی سرزمین کو علم کے لیے زرخیز بنایا۔ تعلیم کے ایسے ایسے گھنے اور سائیدار درخت اس سرزمین پر اگائے کہ ان کے پھل اور سائے کتنی ہی نسلوں کو فیض پہنچا چکے ہیں۔ آج بھاولپور وہ علاقہ ہے جہاں پہ ابھی بھی پیلیسز انٹیکٹ ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہیں، اور اس کے لیے بہت دنیا اور ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ بھاولپور کے اندر جو قلعے ہیں، مختلف فورٹس ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، اور قلعہ ڈراور پاکستان کے میگنینیمیٹی کے حوالے سے، اس کے گرینڈر کے حوالے سے، اس کا جو جتنا بڑا اس کا قد کاٹ ہے وہ ایک ممتاز مقام حاصل رکھتا ہے پاکستان میں، تو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں واحد یہ خطہ ہے بہاولپور کا جو کہ اس لحاظ سے سیاحت کے لیے بہت اہم بن سکتا ہے۔ یہاں کے جو محلات ہیں وہ اٹالین اسلامی طرز ہے، اور اسپینش ہے، ایجپشین ہے، اور ٹرکش ہے۔ ان تمام کے ملاپ سے یہ محلات بنائے گئے ہیں۔ نور محل بنایا گیا، اور عجیب اتفاق ہے، ایک بات بتا دوں کہ نور محل اس وقت 1879 میں بنا، اور یہ صرف 12 لاکھ روپے سے بنا۔ نو ڈاؤٹ بھاولپور کے اندر ٹورزٹ کا تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ جیسے ہم ایک ایکٹیویٹی صرف جنریٹ کر رہے ہیں یہاں پر جیپ ریلی کی صورت میں، اسی صرف ایک ٹورسٹ ایکٹیویٹی میں 1 لاکھ پلس لوگ 3 دن کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ میڈیکل پروفیشن میں اگر کوئی شخص یہاں میڈیکل ٹورزم سٹارٹ کرنا چاہے تو بہاولپور اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ بہاولپور کا ایک اور امتیازی وصف یہاں کی مخصوص آب و ہوا اور تاریخ ہے۔ جس شہر کے ایک طرف دریائے ستلج ہو اور دوسری طرف ہزاروں برس پرانی تاریخ کا وارث صحرا، جس شہر کی دیواروں پر
चारों मौसम उतरते हों, जहाँ की मिट्टी से हर रंग के फूलों की खुशबू आती हो, और जो सरजमीन तारीख में हज़ारों बरस पुरानी गलियों में घूम रही हो, और अमन व अमान जिस मिट्टी की पहचान हो। तो यही तो वो सब कुछ है जो किसी भी खित्ते को सयाहती मरकज़ बनाने के लिए दरकार होता है। कहीं ज़मीन के जिस्म पर रगों की फैली नहरें हैं, तो कहीं लाल सुहानरा के मकाम पर वक्त की तरह छलांगे लगाते नायाब हिरन हैं। भावलपुर की मिट्टी का हर जर्रा अपने अंदर एक अजीम तारीख का विरसा समोए हुए है। ये वो खूबसूरत मंजर है जिसे दुनिया की आंख को देखना चाहिए। ये तारीख की वो अजीम तहरीर है जिसे पढ़े बगैर किसी का इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता। ये वो रास्ता है जिस पर चले बगैर किसी सयाह की सियाहत मुकम्मल नहीं हो सकती। बगदादुल जदीद स्टेशन से सादिक पाकिस्तान एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन डिज़ाइन की जाए जो पाकिस्तान की सकाफ़त को और ख़ुसूसन बहावलपुर की सकाफ़त को नई नस्ल तक और टूरिस्ट तक पहुँचाए, और उसके साथ साथ एक तफरीह के लिए भी एक मौका फराहम करे बहावलपुर के लोगों के लिए भी और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए भी। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मेडिकल ब्रेन्स हैं जो कि फिजिशियंस एंड सर्जन्स हैं, एंड देयर आर ऑलरेडी सो मैनी पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम UAE, Middle East to get surgeries to be treated here, and we have such a huge potential of tapping into that market. और मैं ये समझता हूँ कि बहावलपुर पाकिस्तान में लीडिंग रोल ले सकता है मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म। आज इस शहर में हर चंद कदम पर कोई न कोई तालीमी इदारा मौजूद है। देखने वाली आंख को यही लगता है कि ये शहर आबाद ही तालीमी इदारों की वजह से है। जिस शहर की सड़कें सूरज के तुलू होते ही किताबें उठाए हुए तालिब इल्मों के कदमों से आबाद हो जाएं, उसे शहर तालीम न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इस शहर ने माजी में दुनिया भर से आलिम और फाजिल लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे, उन्हें यहाँ बुला के आबाद किया और इस शहर बेमिसाल में इल्म व दानिश की मजबूत बुनियादें रखी। वो मुस्तकबिल में भी इस मुल्क में इल्म और तालीम का एक मजबूत मरकज़ बनने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यहाँ के तालीमी इदारों में ख़ास तौर पे सादिक पब्लिक स्कूल में हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट से जब वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो UK या यूरोप में रह रहे होते हैं उनके बच्चे भी यहाँ से आकर तालीम हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह एक पुरअमन माहौल है, एक साजगार माहौल है, और जिस तरह यहाँ पर एक बैकग्राउंड मौजूद है, तो आला तालीम के इदारे भी अच्छे बनेंगे, स्कूल भी मज़ीद बनेंगे, तो ना सिर्फ इलाके के लोगों को, ना सिर्फ मज़ाफ़ात और पाकिस्तान के इलाकों को, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर यहाँ पे इंशाअल्लाह तालिब इल्म आएंगे और वो तालीम को परसू करेंगे। मेरे ख्याल में द टाइम हैज़ कम टू ब्रिंग बहावलपुर टू द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड टू बहावलपुर। कोई भी खित्ता उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए। तो हमारी वही स्लोगन के
नॉट एड बट ट्रेड, उसी को लेके हम आगे चलना चाहते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस खित्ते में लेके आना चाहते हैं। चोलिस्तान के जो जानवर हैं वो उनका गोश्त पसंद इसलिए भी किया जाता है कि सहरा का जानवर जो चलता ज़्यादा है, खाने को कम मिलता है, उसको के अंदर फैट कंटेंट्स कम होते हैं, उसका गोश्त जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बहुत सी खूबियाँ लिए हुए और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे होना बहुत सी हमें एक बहुत बड़ा ख़जाना है। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। अभी हम खाली अपना यहाँ से गायें, भैंसें, ऊँट वो हम मंडी में लाते हैं, उनको हम रॉ मटेरियल के तौर पर सेल कर देते हैं। अगर हम इसको मैक्सिमम वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो हम क्या करें कि हम यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट स्लॉटरिंग हाउस लगवाएं, जहाँ पे वो चीज़ें प्रोसेस हों, उनका मीट बने और मीट बन के उस मीट को हम इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे पास एयरपोर्ट डेफिनेटली वो एक मौजूद है, उसको हमें और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कार्गो फैसिलिटी यहाँ पे हो, उस मीट को हम पैक करके इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, जहाँ हलाल मीट का हमारे पास मार्केट है। अब हलाल मीट मार्केट खाली एशिया की 315 बिलियन US$ की है और खाली गल्फ रीजन की हलाल मीट मार्केट जो है वो 44 बिलियन US$ की है और इसके अंदर हम एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो टैप कर सकते हैं। इसके अंदर हम ये चाहते हैं और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी का एक विज़न है कि लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाए, जहाँ से डायरेक्टली मीट प्रोसेस हो और पूरे मिडल ईस्ट में यहाँ की एयरपोर्ट फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करते हुए वो मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट किया जाए और हम एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इस 44 बिलियन US$ की मार्केट का हम ले सकते हैं। भावलपुर बुनियादी तौर पर एक ज़रई इलाका है। चारों मौसमों की नेमतों से सरफराज होने के सबब यहाँ हर तरह की ज़रई अजनास पैदा होती हैं। कपास और गंदम इसमें नुमायाँ हैं। इस ज़रई निज़ाम की मदद के लिए यहाँ बहुत ही मौसर नहरी निज़ाम एक जाल की तरह पूरे इलाके में फैला हुआ है। इसी हवाले से यहाँ मुख्तलिफ सनतें भी हैं, जिनमें फ्लोर मिल्स, कॉटन एंड जेनिंग मिल्स, शुगर मिल्स और इसके अलावा कई दीगर छोटी बड़ी सनतें हैं। सनती तरक्की के हवाले से भावलपुर को पाकिस्तान में एक ऐसे खित्ते का मकाम हासिल है जिसे इम्कानात की सरजमीन कहा जा सकता है। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना लेना चले मेरे संग, बोलूंगी। हमारे पास सोलर जो है, सन जो है वो इन अबंडेंस है और ये अबंडेंस जो है अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से कैश करा लेते हैं, अगर हम सोलर प्लांट्स यहाँ लगा लेते हैं तो हम अपने इस नेचुरल रिसोर्स को टैप करने में कामयाब हो जाएंगे और हम पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल ग्रिड में इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके दे सकते हैं कि हमारा पूरा शहर, पूरा भावलपुर और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो है यहाँ से इतनी बिजली ले सकता है कि वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो खुद मीट करेगा इंशाल्लाह। हमारा ये विजन है कि ये सिर्फ सोलर पार्क ना रहे, बल्कि ये एक एनर्जी सिटी में डेवलप हो, जिसके अंदर न सिर्फ ये हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हों सोलर एनर्जी से, बल्कि कोल से, फर्नेस ऑयल से, बायोगैस से और ऐसे तमाम बायो इंग्रेडिएंट्स जिनसे इवन इंसिनरेशन से हम जो है वो एनर्जी जनरेट करें, पावर जनरेट करें। तो एनर्जी सिटी का हमारा बेसिकली कंसेप्ट है कि भावलपुर के खित्ते को एक दफ़ा फिर पूरे पाकिस्तान की अंधेरों को बुझाने की और उसको उजाले में लाने की हम कोशिश में हैं और हमें उम्मीद है कि भावलपुर एक दोबारा से पाकिस्तान में शमा जलाएगा। भावलपुर की सतरंगी सकाफ़त अपनी एक मखसूस शनाख्त रखती है। इस शनाख्त में यहाँ की रिवायतों के अलावा ज़रगरी, कच्चा टांका, मुकेश, खुस्सा, मिट्टी के बर्तन और मोहब्बत शामिल हैं।
यहाँ के हुनरमंद और उनका काम पूरी दुनिया में अपनी मांग रखता है। यहाँ के दस्तकार अपने फ़न में इस कदर यकता हैं कि अगर इसको बाकायदा सनत का दर्जा दिया जाए तो ये खित्ता पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकता है। बहावलपुर में दस्तकारी की शाहकार चीज़ें में यहाँ कपड़ा, उसके ऊपर जो मीनाकारी है, उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती है, जो मुकेश का काम होता है, यहाँ के जो खुस्से हैं, यहाँ की जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज भी मकबूल हैं और आज भी किसी बड़े अदारे के पास जाकर इनको बेचा जा सकता है। और अगर एक यहाँ पर बहावलपुर में इसकी सरकारी सरपरस्ती में किसी तरह एक ऐसी इंडस्ट्री कायम हो जो कि यहाँ की दस्तकारी की चीज़ों को बैनुल-अक़वामी तौर पर तरक्की दे, तो इससे न सिर्फ इस इलाके की खिदमत हो सकती है बल्कि इस इलाके में बनी हुई शाहकार चीज़ें जो हैं, जो दुनिया में बहुत मामूली कीमत में बिक रही हैं, वो ज़्यादा कीमत में बिक सकती हैं। लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा लड़ने चली। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी वेडिंग्स और जितने भी फॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी के किए हुए काम बहावलपुर से बन के जाते हैं। Yet so many few people actually know where the origin is, and on the other hand, those people who are involved in that craft are not fully utilized, not fully paid. लंबी डगाओं पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की। बहावलपुर हमेशा से उम्मीद और यकीन की सरजमीन रही है। इसकी बुनियादों में मट्टी और गारा नहीं बल्कि ख्वाब हैं। यही वजह है कि इस खित्ते में हमेशा तरक्की के बेपनाह इम्कानात और रास्ते मौजूद रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस पोटेंशियल को समझें और इसको समझ के एक ऐसा विजन डेवलप करें जिससे इस खित्ते की एक नई इक़्तिसादी तरक्की का दौर रवां हो। इस मिट्टी में एक बार फिर नए ख्वाबों के बीज बोए जा रहे हैं। बहावलपुर एक बार फिर एक नए पाकिस्तान का अक्स बनने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा इस शहर ने 1947 में किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम अपने जो विज़न है इसके हिसाब से जो प्रोग्रेस कर सकेंगे उसको तमाम खित्ता, सिर्फ बहावलपुर शहर नहीं, क्योंकि बहावलपुर शहर इटसेल्फ पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये सिर्फ बहावलपुर की तरक्की नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। अगर हम इसी तरह छोटे छोटे शहर मिलके अपनी तरक्की को सेल्फ सेंटर्ड होकर हम अपनी तरक्की को फोकस करें तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तारीख एक नए मुस्तकबिल में एक बार फिर खुद को दोहराने जा रही है। बहावलपुर ने एक बार फिर एक नए पाकिस्तान की ताबीर बनने के लिए अपने घर के सामने के सब दरवाजे खोल दिए हैं। इस मिट्टी की धूल से निकले सोने जैसा बूर, बातें करती रेत जहां की वो है बहावलपुर। मुझे बेखौफ